We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान. Hello everyone. So today we are going to learn some common errors which people make in their sentences. Now when we talk about errors, they are minute errors, little errors which you don't realize when you speak. So if I give an example, people say that I didn't wanted to eat that apple, or I didn't went to see that movie. Is that correct? Just think, is that correct? So many of you would say no, it's not correct, because we do not use certain words with the first form of verb or second form of verb. There are many explanations to it. Okay, so there's one more sentence which I have heard people using quite often when they say in nowadays people don't like to eat spicy foods. So what is wrong over here? So some of you would say there's nothing wrong, but yes, there is something wrong. And today I've got 10 sentences for you in English which may sound correct to you, but somewhere they are incorrect. So let's begin. Okay, this sentence, when you speak about cope, I am unable to cope up with this situation. So is this correct? I am unable to cope up. We've heard a lot of time the word cope up, this word cope up. I cannot cope up with this. I cannot cope up with my friend. So this is correct, and the other one is I am unable to cope with this situation. So there are two sentences here in front of me. Which one do you think is correct? Okay, so in this one is incorrect and this one is correct. How is it correct? Because when we talk about the word cope itself means deal. Okay, when you cope with something, it means to deal with something. So in this you do not use this preposition cope up with it. So if you remove this cope and you just replace it with deal, it will make sense without this up. So I am unable to deal with this situation. Similarly, I am unable to cope with this situation. So with cope, I have added here, I am unable to deal with this situation. Okay, so now just remember not to use not to use up with cope. Got it? I am unable to cope with something. Alright, next. Second sentence is, do you wear perfume when you go out, or do you put on perfume when you go out? Think, you all know what is a perfume, right? So whenever you talk about perfume, do you spray perfume, do you wear perfume, or you put on perfume? For this you have this phrase wear perfume. You always wear perfume. Sounds very strange, but yes, you wear perfume. So the correct way to remember this is wear perfume. So whenever you want to use this word or this sentence, you always use with this, like I don't like to wear perfumes. What a nice perfume you are wearing. So wear is the correct word which goes with perfume and not put on or spray. So here we will cross this out. So this is incorrect, this is correct. Okay. Next is, please off the lights when you go out of the room. Alright, so suppose you are sitting in a room and maybe your brother or your mother enters the room. Okay, and they talk to you and they go out. So before going out, you instruct them to turn off the light or just off the light. Whenever we use this word in Hindi, we say light off kar dena ya light band kar dena. ठीक है, but whenever we translate the same thing from Hindi to English, we make mistakes. We don't just off the lights, we either turn off the lights or switch off the lights. So if you replace it with switch off, then also it's fine. Please switch off the lights when you go out of the room, or please turn off the lights. Similarly, if we talk about something to switch on, जैसे कि हम लोग किसी को on करने की बात करेंगे, like lights or fans, so we can also use turn on the lights or turn off the lights, या switch on the lights or switch off the lights. Got it?
फाइन. सो यहाँ पे दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज इनकरेक्ट. इतना समझ में आ गया अभी तक? ओके, आगे बढ़ते हैं. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है विच पीपल मेक. माई कजन सिस्टर, माई कजन ब्रदर. तो यहाँ पे ये मैंने पहले भी आई हैव टेकन ए सेशन ऑन दिस, एक सेंटेंस लिया था. तो यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, व्हेन यू टॉक समथिंग अबाउट योर कजन, यू नेवर से माई कजन सिस्टर और माई कजन ब्रदर. नेवर से दिस. यहाँ पे इन अ वे नाम से पता ही चली जा रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल. सो माई कजिन श्वेता इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स. माई कजिन श्वेता इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स. ओके, यहाँ पे my cousin, this is right, this is correct and this is incorrect. We do not use sister or brother with cousin. Cousin बोलना ही sufficient है. Okay, next. यहाँ पे we are talking here about possession. ठीक है, it is Dan's and Rob's house. We are talking about one house over here. So for example, this is the house. Okay, this is the house we are talking about. And यहाँ पे who lives here? Dan and Rob, they both live here. So when we are talking about two singular nouns और उनका possession is something singular, तो हम यहाँ पे Dan's and Rob's house बोलेंगे या it is Dan's and Rob's house. Which one is correct? सोचो, which one is correct? दो भाई हैं, maybe Dan और Rob, and they both own this house, they possess this house. तो हम इसको क्या बोलेंगे? It is Dan's and Rob's house or it is Dan and Rob's house. Which one is correct? Here we say that the first one is incorrect and the second one is correct. क्योंकि जब हम possession की बात करते हैं, दो लोगों की possession की बात करते हैं, then जो हमारा second वाला जो singular noun है उसमें apostrophe s लगाते हैं, पहले वाले में नहीं लगाते. Not here. It is, इसीलिए यहाँ पे it is Dan and Rob's house. ठीक है, got it? Okay, next. The child does not recognize her parents. Maybe something has happened and the child does not recognize her parents. ठीक है, and the child is not recognizing her parents. Which one is correct? Tell me which one is correct. यहाँ पे कौन सा करेक्ट है इसको बताने से पहले हम यहाँ पे verbs के बारे में बात करेंगे. Recognize is a verb, isn't it? अब verbs यहाँ पे होते हैं दो टाइप के we are discussing. पहला होता है action verbs. Action verbs में something which denotes an action like play, dance, write, eat, sing. Okay, and then walk, jump, eat, stroll. All these are action verbs जो हमें बताते हैं action, क्या action हो रहा है. When we talk about stative verbs, एक और verb है stative verbs. Stative verbs जो verb होता है वो एक state बताता है, एक दशा बताता है verb की. यहाँ पे कोई action नहीं हो रहा है. ठीक है, अब इनमें difference क्या है? If you talk about seem, seem का मतलब होता है लगता है, like it seems to me that he is the thief. It seems to me that he is the culprit. Prefer, I prefer coffee to tea. ठीक है, तो यहाँ पे इनमें सिर्फ these are also stative verbs, these are action verbs. इसमें अंतर ये है कि action verbs में we can add ing to it to denote that some action is going currently. जैसे I am playing. ठीक है, तो ये action बताता है कि अभी what is happening right now. तो इसमें हम लोग action verbs में ing लगा सकते हैं. For example, I am teaching. So teach is an action verb, इसलिए उसमें ing लग गया. Currently I am teaching. You are listening. लेकिन अब यहाँ पे stative verbs जो है इसमें there is no ing. हम लोग इसमें कभी भी ing नहीं लगाते हैं. So you never say that it is seeming to me that he is the culprit. It is seeming to me. हालांकि ये दशा बता रहा है हमें. It is telling us what is happening currently. Currently मुझे ऐसा लग रहा है कि he is the culprit. बट इसमें हम लोग कभी भी वर्ब में ing नहीं लगाते हैं, इसलिए इनको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं जो स्टेट बताता है. ठीक है, सिमिलरली स्मेल, अगर हम स्मेल की बात करें तो स्मेल का मतलब होता है समथिंग बैड, बैड ओडर जिसको बोलते हैं, राइट.
सो अगर आप स्मेल की बात करते हो तो हम लोग ये नहीं बोलते आई स्मेलिंग समथिंग फिशी और आई एम स्मेलिंग समथिंग फिशी, ठीक है, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, आई एम स्मेलिंग समथिंग फिशी, इस केस में देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। सो अगर हम स्मेलिंग की बात करते हो तो यहाँ पे बिकॉज देयर इज नो आईएनजी, इसलिए हम लोग स्मेल को स्टेटिव वर्ब है, देयर इज नो आईएनजी एट ऑल, सो आई स्मेल समथिंग फिशी। आ गया डिफरेंस समझ में? इसीलिए अब यहाँ पे बताओ कि कौन सा सही है। रिकॉग्नाइज इज अ स्टेटिव वर्ब, ये हमें स्टेट बता रही है, एक्शन नहीं बता रहा है, इट इज नॉट टेलिंग एन एक्शन, लेकिन ये हमें स्टेट बता रहा है, रिकॉग्नाइज। सो यहाँ पे if you said that this one is correct, then you are right. The child does not recognize her parents. I do not recognize you. हम लोग कभी नहीं बोलते, जैसे कोई अगर फ्रेंड आ जाता है सामने एंड फ्रेंड बोलता है पहचाना मुझे, हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो हम लोग कभी नहीं बोलते आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग यू, हम सब हमेशा ही बोलते हैं आई डू नॉट रिकॉग्नाइज यू, आई एम सॉरी। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट, ओके, ये जो कॉमन मिस्टेक है लाइक पीपल मेक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस दैट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट व्हेन पीपल स्पीक दे टेंड टू टेल द डेट, लाइक हम लोग डेट के बारे में अगर बात करें, इसको मैं सेंटेंस बताती हूँ, आई विल टेक लीव ऑन 7 अक्टूबर, आई विल टेक लीव ऑन 7 अक्टूबर, सही है, आई विल टेक लीव ऑन 7 अक्टूबर, ऑन 10 अक्टूबर आई एम गोइंग टू दिल्ली। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेट की, आई विल टेक लीव ऑन 7 अक्टूबर, माइनर सा डिफरेंस है TH का, किसका डिफरेंस है? TH। सो वेन एवर वी टेल द डेट्स जिसमें कि TH मेंशन होता है, लाइक दिस, तो कई लोग मैंने सुना है दे स्किप दिस TH पोर्शन और वो क्या बोलते हैं, I am taking leave on 7 October. Yeah, I am going to Delhi on 13 October. So they leave this TH portion. तो जब भी हम किसी को डेट बताते हैं, it is mandatory to add TH. ठीक है? कई लोगों को even I have heard people saying things like on 1 October or on 1 September I am going to do this. ठीक है? So डेट का जो फॉर्मेट है, it is like first, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th। सो दिस इज द फॉर्मेट जिसमें हमें डेट को बोलना है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट साउंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इसमें आई हैव पेस्टेड दिस पिक्चर हियर, यू हैव टू रिलेट दिस पिक्चर। व्हाट इज दिस बॉय डूइंग? व्हाट इज दिस बॉय डूइंग? इज ही कटिंग हिज हेयर और इज ही टेकिंग अ हेयर कट? बाल लंबे हो गए हैं, somebody tells you कि बाल कटवा के आओ, तो तुम क्या बोलोगे? What will you say? Okay, I am going to take a haircut or I am cutting my hair. Which one is correct? अगर इस पिक्चर से रिलेट करें, क्या ये खुद बाल काट रहा है? Cutting my hair means practically I am myself cutting my hair. ठीक है? For example, if I say I'll cut my hair, that means मैं खुद ही अपने बाल काटूंगी, I'll cut my hair. बट अगर आप हेयर कट लेते हैं, सो यू ऑलवेज टेक अ हेयर कट, ठीक है? आई एम टेकिंग अ हेयर कट, आई एम गोइंग टू टेक अ हेयर कट टुमारो, ठीक है? एंड माई सिस्टर इज गोइंग टू टेक अ हेयर कट टुमारो, सो ऑलवेज टेक विथ हेयर कट, ठीक है? नेक्स्ट, ओके, इसमें अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोजेशन। अब देयर आर टू कैट्स हियर, रिलेट these two sentences with the picture which is here. यहाँ पे if you can see that there are two kittens. Now kittens, you know, cat के बच्चों को हम लोग kittens बोलते हैं. There are two kittens and they are playing with a toy. है ना? अब इसी से related हम यहाँ पे आते हैं sentence में, the dog broke the kitten's toy. The dog broke the kitten's toy and the dog broke the kitten's toy. ठीक है? वेन एवर वी स्पीक, ये पोजेशन ऐसा है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी स्पीक वी डोंट रियलाइज द मिस्टेक, लेकिन जब हम लिखते हैं उस टाइम गलती होती है। तो व्हाट इज रॉन्ग ओवर हियर? साउंड्स गुड, दे आर प्लेइंग विद द टॉय बट द डॉग ब्रोक द किटन्स टॉय, ठीक है? लुक एट द नंबर ऑफ द किटन्स हियर, यहाँ पे कितने किटन्स है? दे आर 2 किटन्स, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्लूरल किटन्स। जब भी हम किसी प्लूरल चीज़ के बारे में बताते हैं कि उनकी है, लाइक
किसकी टॉयज थी? किटन्स की टॉय थी, एंड किटन्स यहाँ पे 2 हैं। तो हम जब भी एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे जनरली हम लोग व्हेनेवर वी ट्राई टू शो पोजेशन ऑफ समथिंग, दैट फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर्स हाउस, ठीक है, माई सिस्टर्स हाउस। अब ये क्या पोजेशन बता रहा है? मेरे सिस्टर का हाउस है, ठीक है, या दिस इज माई सिस्टर्स हाउस, कुछ भी। अब यहाँ पे हमने माई सिस्टर्स किया बिकॉज यहाँ पे ये बता रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट वन सिंगुलर सिस्टर, मैं अपनी एक सिस्टर के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सिस्टर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। बट थिंग्स रियली चेंज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर्स हाउस। अब मे बी इस घर में, जो भी घर की बात कर रही हूँ, वहाँ पे मोर देन वन सिस्टर है, इसीलिए प्लूरल है। बट प्लूरल में अपॉस्ट्रोफी कहाँ पे आएगा? प्लूरल में अपॉस्ट्रोफी आएगा बाय द एंड ऑफ दिस, यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं, वेन एवर वी स्पीक मे बी वी डोंट रियलाइज, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। माई सिस्टर्स हाउस, सिस्टर में यहाँ पे एस में अपॉस्ट्रोफी, इसीलिए यहाँ पे द डॉग ब्रोक द किटन्स टॉय, इसीलिए दिस वन इज करेक्ट। द डॉग ब्रोक द किटन्स टॉय, ये भी गलत नहीं बोलूंगी इसमें, बट अगर हम इसके बाद में रिलेट करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट बस जस्ट वन किटन, नॉट मोर देन वन, 2। प्लूरल के लिए ये सही है, सिंगुलर के लिए दिस इज राइट। अकॉर्डिंग टू द पिक्चर दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज इनकरेक्ट। गॉट इट? ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर होगा अभी तक। नेक्स्ट, ओके, द सिजर्स आर ब्रोकन, द सिजर्स इज ब्रोकन, ठीक है। हमने अभी तक वी हैव टिल नाउ अंडरस्टूड और वी हैव रेड कि अगर कोई भी चीज़ हमारी नाउन अगर सिंगुलर हो तो उसको प्लूरल करने के लिए हम लोग एस लगा देते हैं, जैसे कि बॉय बिकम्स बॉयज, ठीक है। देन किड बिकम्स किड्स, ये सही सीखते हुए आ रहे हैं, राइट। देन देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, लाइक चाइल्ड का प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन, मैन का प्लूरल men, यही है ना। दीज आर द टाइप ऑफ सिंगुलर प्लूरल्स दैट वी डन। एक यहाँ पे कुछ टाइप के ऐसे भी नाउन्स होते हैं विच मे साउंड लाइक प्लूरल टू यू बट दे आर नॉट प्लूरल एक्चुअली। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सो ये सारी चीजें दे आर मोर टू इट। अब जीन्स, ट्राउजर्स, यू विल नेवर से आई वांट टू बाय अ जीन और आई वांट टू बाय ट्राउजर, ठीक है। ये दीज थिंग्स प्लूरल साउंड करते हैं बट इनका सिंगुलर भी यूज होता है। सिमिलरली ये जो सिजर्स वर्ड है, सिजर्स ऑल्सो इज अ वर्ड जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम साउंड करता है, इसको हम सिजर कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस है द सिजर्स आर ब्रोकन, द सिजर्स इज ब्रोकन, विच वन इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे द सिजर्स आर ब्रोकन, ये इनकरेक्ट बोलेंगे हम इसको, द सिजर्स इज ब्रोकन, ठीक है, फाइन। क्योंकि सिजर्स, मेरे को आपको ये बताना था कि यहाँ पे जो प्लूरल है वर्ड्स आर यूज, फॉर एग्जाम्पल हेयर के लिए हम लोग हेयर्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो देयर आर सम वर्ड्स जिनका प्लूरली हम यूज करते हैं वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो दीज आर द 10 वर्ड्स, अगर आप इनको, दीज आर द 10 सेंटेंसेस, सॉरी, इफ यू प्रैक्टिस देम ऑन डेली बेसिस दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जैसे अभी राइट नाउ आई अंडरस्टैंड मैनी पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन विच इज़ कमिंग अप ऑन 6th September, बट स्पोकन इंग्लिश यू कैन नॉट रियली इग्नोर इट। स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जैसे विद टाइम आपने अपने रिटर्न के लिए प्रिपेयर किया पूरा साल, सिमिलरली स्पोकन इंग्लिश इज ऑल्सो समथिंग विच यू विल लर्न with time and with practice, so you really need to follow these also on a daily basis। अगर आप 1 hour भी 30 minutes भी स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं and you practice it, क्योंकि अभी आप ये मत सोचना कि आफ्टर यू क्लियर योर रिटन एग्जाम देन आप स्पोकन के लिए प्रिपेयर करोगे, जो कि मोस्टली लोग सोचते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट राइट ऑल्सो। धीरे धीरे करके ही आपका प्रोग्रेस होगा इस चीज़ में, धीरे धीरे करके। आई हैव सीन पीपल हु आर नॉट एबल टू form sentences,
या इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करने में उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते, बट आफ्टर 2-3 months दे रियली गेन दैट कॉन्फिडेंस, दे रियली गेन दैट कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. सो ये ग्रेजुअली होता है, ओवरनाइट नहीं हो गई ये चीज़. सो I would request you to watch this channel and improve yourself with time. ठीक है? So that's all. Until next time, take care. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.